For you, it is your knowledge that you are selling rather than a real estate product. एक कंसल्टेंट को ओवरऑल 360 डिग्रीज की नॉलेज होनी चाहिए। अपने इन्वेस्टर्स को वो बेटर गाइड कर पाएंगे, एंड यूजर्स को वो बेटर प्रोडक्ट्स दे पाएंगे। Of providing good services as a consultant to the developer, to the client is a good consultant's job. Clients always expect good service from you. You should understand your client. The client has a certain inclination towards a certain product for investing his money. You should understand. Suppose you think that that is the right thing to do as a good consultant, because for you it is your knowledge that you are selling rather than a real estate product. So if you think that the investor whatever has already scouted for the project as per your optimum knowledge that you have of the market is the right product, then you will tell him or her that that's the right product. और अगर आपको लगता है कि नहीं, his research is wrong because it is your consultancy which rotates around the investors thing, that is why he is coming to you for your master product that you are at. So then you should guide him. No, this is not the right approach to invest in your money. You must divert and give your consultancy in such a fashion that your science, your research, your R&D about the different projects that you are suggesting him, which will convince him to invest in the right product. To become a good real estate consultant, we don't have certain courses here in India. अभी वो धीरे धीरे स्टार्ट हो रहे हैं। यूनिवर्सिटीज इसको अपने करिकुलम का पार्ट बना रही हैं। अब डिग्रीज आ रही हैं रियल एस्टेट को लेके, मास्टर कोर्सेज आ रहे हैं। बट एक अच्छा रियल एस्टेट कंसल्टेंट बनने के लिए, मैं कहता हूँ कोई भी अच्छा कंसल्टेंट बनने के लिए आपको नॉलेज जरूरी होती है उस पर्टिकुलर डोमेन की। एंड रियल एस्टेट इज सच अ फील्ड के भी ये हम ऐसा देखते हैं कि भी डोमेस्टिकली चेंज होती है, हर मार्केट चेंज होती है। दिल्ली इज अ डिफरेंट मार्केट ऑफ रियल एस्टेट, गुड़गांव इज अ डिफरेंट मार्केट, नोएडा इज अ डिफरेंट मार्केट, जयपुर इज अ डिफरेंट मार्केट। सो इट इज अ वेरी लोकलाइज्ड ट्रेड। तो अब स्टेट सब्जेक्ट है, सब स्टेट्स के अपने लॉज हैं। तो आपको एक अच्छा रियल एस्टेट कंसल्टेंट बनने के लिए यू नीड टू नो द बाय लॉज, यू नीड टू हैव द नॉलेज, यू नीड टू हैव द कंपटीशन, यू नीड टू नो द डिमांड एंड सप्लाई, रेजिडेंशियल सेक्टर कितना आ रहा है। अब जैसे गुड़गांव में लग्जरी है, तो गुड़गांव में लग्जरी क्यों आ रही है, क्यों चलेगी, बिकॉज यहाँ पर एवरेज सैलरी ब्रैकेट्स क्या हैं, यहाँ पर फैक्ट्रीज कितनी हैं, इन्वेस्टर्स, कमर्शियल्स, हॉस्पिटल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर। एक कंसल्टेंट को ओवरऑल 360 डिग्रीज की नॉलेज होनी चाहिए, लॉज की नॉलेज होनी चाहिए, डीटीसीपी के रूल्स की नॉलेज होनी चाहिए। ही हैज टू नो द डेवलपर, द क्रेडेंशियल्स ऑफ द डेवलपर्स, एंड ही हैज टू गाइड राइट। अपने इन्वेस्टर्स को वो बेटर गाइड कर पाएंगे, एंड यूजर्स को वो बेटर प्रोडक्ट्स दे पाएंगे, जस्ट because of the knowledge and the competition analysis that they can make by virtue of them. See, clients are actually never irritating. You are into service industry and clients always expect good service from you as a consultant. So, and we guys are dependent upon developers. Paperwork late हो जाता है, client को सही तरह से service नहीं कर पाते. It is not because of our lacuna. It is sometimes a developer delays in giving the documents to the clients. So उसमें as consultants हमको irritate नहीं होना, हमको एक optimum patience बना के रखनी है. We have to do and play a very balanced act between the developer and the client and make the client understand that these are the steps, and it takes time sometimes, and we should support the developer and at the same time tell the developer that the client has already performed his part of the work and now it is the developer's thing to perform. So उनको patiently handle करना, patiently ही अपने client को handle करना, and come out as a winner with the solution of providing good services as a consultant to the developer, to the client is a good consultant's job. So patience is the only virtue that one has to carry with. So initially you should understand your client first. Rather than to give any suggestion, we need to know about the client, that whether the client वो end user है या वो एक इन्वेस्टर है। तो उसके हिसाब से आपको उसको प्रॉपर्टी की या रियल एस्टेट की कंसल्टेंसी और एडवाइजरी देनी। सो दैट इज व्हेन यू डिसाइड इफ द क्लाइंट इज एन एंड यूजर, you will suggest the properties to him as per his budget, as per the locations that he want, that his children is going to so and so school, उसके आसपास उसको घर चाहिए, इस बजट में चाहिए, हॉस्पिटल्स कितने पास हैं। सो एंड यूजर को आपने उस पर्सपेक्टिव से बताना होता है। फॉर एन investor is always worried about the security of his money, and secondly for the growth of the money.
तो उसको रियल एस्टेट की कंसल्टेंसी आप उस हिसाब से दें। तो एक बारी जब आपने अपना अच्छा कंसल्टेंट अपने हिसाब से, अपने समझ बूझ के हिसाब से R&D करके आपने जब सिलेक्ट कर लिया, देन डेफिनेटली आपको अपने कंसल्टेंट की बातें माननी चाहिए। उसको उसके ऊपर आपको 99 नहीं 100% उसके ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए। एंड जैसे एक एडवोकेट अच्छा होता है और हम उसको शॉर्टलिस्ट कर लेते हैं, डॉक्टर अच्छा होता है हम उसको शॉर्टलिस्ट कर लेते हैं, आर्किटेक्ट अच्छा होता है हम उनको शॉर्टलिस्ट कर लेते हैं, ऑल ऑफ देम आर कंसल्टेंट्स। लाइकवाइज ये रियल एस्टेट कंसल्टेंट जब आपने एक हायर कर लिया है एंड यू आर कन्विंस्ड विद देम, देन प्लीज गो विद देयर अप्रोच, with their mindset, because it is their bread and butter, it is their R&D, it is their market knowledge that has brought them there and made them on this stature of being a good consultant, and that is why you have shortlisted them। तब आप उनके साथ एक 100% उनके ऊपर फेथ करके और ट्रस्ट करके उनके साथ काम कीजिए। फिर आप मार्केट में इधर उधर बातें दूसरे कंसल्टेंट्स की या दूसरे और आदमियों की, अपने दोस्तों की मत सुनिए, बिकॉज यू नो दैट यू आर वर्किंग विद द बेस्ट ऑफ द कंसल्टेंट्स दैट यू हैव हायर्ड। तो सबसे पहले इन्वेस्टर को ये देखना चाहिए कि भी जो कंसल्टेंट है क्या उसको नॉलेज है, जो वो काम कर रहा है, जो उसको गाइडेंस दे रहा है, क्योंकि प्रॉपर्टी की एक कैपिटल वैल्यू है मार्केट। उस कैपिटल वैल्यू को देखते हुए क्या उसका रेंट आ रहा है ऑर्गेनिकली, क्या लीज में उसके जो फिट आउट्स हैं वो टेनेंट ने खर्चे होंगे या जो लैंडलॉर्ड है उसने खर्चे होंगे, क्या जो लीज है उसका टेन्योर क्या है, लीज में जो केपेक्स है वो किसने लगाया। तो ये कई इंट्रिकेसीज होती हैं और ये कई इस चीज़ के अंदर ना हमारी R&D है इसके ऊपर। मैं आपको यही उसमें सजेशन दूंगा कि भी जो भी इन्वेस्टर्स हैं वो सही कंसल्टेंट्स के साथ जिनको नॉलेज है उनकी राय लेते हुए, ये क्वेश्चंस को अपने माइंड में रखते हुए अपने कंसल्टेंट से पूछते हुए, इस प्रॉपर्टी की खाली की वैल्यू क्या है, जो केपेक्स है वो किसने लगाया है, कंपनी की वो रेटिंग्स खुद चेक करें, लीज को वो खुद पढ़ें और अपने कंसल्टेंट को ये क्वेश्चंस पूछें।